وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ یہ محلہ شہر کے کونے میں تھا، ایک گلی تھی۔ لڑکی ایک معمولی سے مکان پر جا کر رک گئی۔ 3-4 بار دستک دینے کے بعد مکان کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی کھول کر کسی عورت نے پوچھا کون ہے۔ لڑکی نے اوپر دیکھ کر کہا اماں بھی میں ہوں رضوانہ۔ کھڑکی میں جو عورت جھانک رہی تھی اس نے کہا اچھا بیٹی ٹھہرو۔ کھڑکی بند ہو گئی۔ آواز کسی بوڑھی عورت کی تھی۔ اس کے بعد کوئی 1 منٹ کے بعد ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا اور وہ رضوانہ تم اس وقت کیسے کہہ کر اس کے گلے لگ گئی۔ پھر میری طرف ایک نظر دیکھا اور ہمیں اوپر لے گئی۔ ایک معمولی سا کمرہ تھا، باہر سردی تھی مگر کمرہ نیم گرم تھا۔ آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھی تھیں جن پر بستر اور کمبل بڑے تھے۔ جس عورت نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا وہ بوڑھی عورت بھی چارپائی پر کمبل اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے رضوانہ کو بلا کر کہا بیٹی خیریت تو ہے؟ اس وقت تم اچانک کیسے آ گئیں؟ رضوانہ نے کہا اماں بھی بس اچانک آپ لوگوں سے ملنے کو جی چاہا اور آ گئی۔ اس عورت نے میری طرف اور خاص طور پر میرے گیرے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ سادھو جی کون ہے بیٹی؟ رضوانہ نے کہا یہ بڑے پہنچے ہوئے سادھو ہیں اماں، دلی جا رہے ہیں، میں اکیلی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے ٹنڈلا چھوڑتے جائیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میرے لیے اوپر والی کوٹھری میں بستر لگا دیا گیا۔ رضوانہ میرے لیے چائے اور کچھ کھانے کو لے کر آئی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی یہ تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم مسلمان ہو، لیکن یہ معمہ ابھی حل نہیں ہوا کہ تم نے یہ بہروپ کس لیے بنا رکھا ہے۔ کیا تم اس راز کو نہیں کھولو گے؟ میں ہنس پڑا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم اس برے دھندے میں کیسے آئیں؟ رضوانہ نے ایک ثانیے کے لیے آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ ماضی کے زمانے میں کھو گئی ہو۔ رضوانہ نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور شکستہ سی آواز میں کہا ہمارا گھر لدھیانہ شہر کے باہر ایک بستی میں تھا۔ میرا باپ محکمہ نہر میں ہیڈ کلرک تھا۔ میری عمر اس وقت 12-13 سال کی تھی جب پاکستان قائم ہونے کا اعلان ہوا۔ میرے 2 بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن تھی۔ مشرقی پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح لدھیانہ میں بھی مسلمانوں نے ڈٹ کر ہندو سکھ حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن 14 اگست کے بعد جب ڈوگرا اور گورکھا فوج بھی ہندو سکھوں کے ساتھ شامل ہو گئی تو لدھیانہ کے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ شہر میں مسلمانوں کے گھروں پر سکھوں ہندوؤں نے حملے شروع کر دیے۔ لوگ گھروں سے نکل کر قافلے کی شکل میں پاکستان کی طرف چل پڑے۔ ہم بھی پاکستان کی طرف نکل جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سکھوں کے ایک جتھے نے ہماری بستی پر حملہ کر دیا۔ 10-12 سکھ تلواریں کرپانیں لہراتے ہمارے گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے والد کو تلواریں مار مار کر شہید کر دیا۔ میری ماں انہیں بچانے کے لیے روتی ہوئی آگے آئی تو اسے بھی ظالموں نے مار ڈالا۔ میرے بھائیوں نے ڈنڈوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ 2 سکھوں نے میری بڑی بہن کو اٹھا لیا اور لے گئے۔ ایک سکھ مجھے اٹھا کر لے گیا۔ رضوانہ نے سرد آہ بھری اور بولی اس کے بعد میری دکھوں، عذابوں، اذیتوں اور گناہوں سے بھری زندگی کا آغاز ہوا۔ اگر اسلام میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں مسلتی چلی گئی اور آج اس مقام پر پہنچ چکی ہوں جہاں تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ رضوانہ کی اندوہناک آپ بیتی قیام پاکستان کے وقت ہندوؤں کے ہاتھوں اغوا ہونے والی ہزاروں مسلمان عورتوں کی دردناک آپ بیتی تھی۔ میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری چھوٹی بہن کلثوم شہید نہ ہوتی اور اغوا ہو جاتی تو اس کا انجام بھی شاید ایسا ہی ہوتا۔ میں نے رضوانہ سے کہا اب جب کہ تم گناہ کے جہنم سے نکل آئی ہو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم کسی طرح کوشش کر کے پاکستان چلی جاؤ۔ رضوانہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ کہنے لگی تم نے میرے ایک قاتل کو ہلاک کیا ہے، ابھی میرے 3 قاتل زندہ ہیں۔ جب تک میں اپنے ہاتھوں ان کا خون نہیں کر لوں گی پاکستان نہیں جاؤں گی۔ میں خاموش رہا۔ رضوانہ کہنے لگی میں نے تمہیں اپنی زندگی کی داستان سنا دی ہے، اب تم اس راز پر سے پردہ ہٹاؤ کہ تم اصل میں کون ہو اور مسلمان ہو کر سادھو کے بھیس میں کس لیے پھر رہے ہو۔ اس لڑکی رضوانہ کو اپنے بارے میں اصلیت بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور پھر اسے اپنے بارے میں حقیقت بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے یوں ہی ایک فرضی کہانی جوڑ کر سنا دی کہ میرا ایک بہت پیارا مسلمان دوست گم ہو گیا ہے۔ میں نے کسی کو بتایا تھا کہ اسے ہندو سادھو اغوا کر کے گجرات کاٹھیا واڑ کی طرف لے گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہندو سادھو بن کر اپنے دوست کی تلاش کروں۔ بس یہ ہے میرے سادھو بننے کا راز۔ رضوانہ جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ میں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تمہیں شاید معلوم ہو کیا صبح کے وقت آگرہ سے دلی کی طرف کوئی گاڑی جاتی ہے؟ رضوانہ نے کہا صبح کے وقت 1-2 ایکسپریس ٹرینیں بمبئی کی طرف سے ضرور آتی ہیں، یہ تو تمہیں وہاں جا کر معلوم ہوگا۔ میں اپنے سادھوؤں والے لباس سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے رضوانہ سے کہا اب میں چونکہ واپس دلی جا رہا ہوں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے سادھوؤں کے حلیے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہاں سے مجھے دوسرے کپڑے مل سکتے ہیں؟
रिजवाना कुछ सोचकर बोली, मेरी सहेली का भाई आगरा के किसी कारखाने में मुलाजिम है। वो हफ्ते में एक बार घर आता है। उसके कपड़े जरूर संदूक में पड़े होंगे। मैं अजान के वक्त आऊंगी तो मर्दाना कपड़े साथ लेती आऊंगी। वो सलाम करके चली गई। मैं उस लड़की की जिंदगी पर सिवाय अफसोस करने और दिल में दुख महसूस करने के और कुछ नहीं कर सकता था। दिल में ये ख्याल जरूर आया कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी बड़ी कुर्बानियां देकर कायम किया गया है और उसका वजूद किस कदर जरूरी और कीमती है। मेरी कमर के साथ जो टाइम बम, जो च्युइंगम गम की टैबलेट की शक्ल में थे, रुमाल में बंधे हुए थे, ये 6 धमाका खेज बम थे। मैंने उन्हें कमर के साथ ही बंधे रहने दिया और बत्ती बुझाकर बिस्तर में घुस गया। मुझे चंद्रिका और मीनाक्षी का ख्याल आने लगा। मैंने दोनों के तसव्वुर को जहन से झटक दिया और फिर मुझे नींद आ गई। सुबह की अजान के वक्त रिजवाना ने आकर मुझे जगाया। मैं जल्दी से उठकर बैठा। वो मेरे लिए एक पुरानी पतलून, एक पुरानी कमीज, जैकेट और बूट लेकर आई थी। ये सारे कपड़े उसकी सहेली के भाई के थे। कहने लगी, तुम कपड़े तब्दील कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद मैंने कपड़ों का जायजा लिया। बहुत गनीमत थे। उसकी सहेली का भाई मेरे कद काठ का मालूम होता था। मुझे पतलून पूरी आ गई, जैकेट भी पूरी आ गई। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे जूतों की थी, लेकिन जुराबे पहनकर वो भी पूरे आ गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि साधुओं वाले कपड़ों में मेरे पकड़े जाने का बहुत खतरा था। जाहिर है अहमदाबाद पुलिस और सीक्रेट सर्विस वालों ने अहमदाबाद से लेकर झांसी, भोपाल, ग्वालियर, आगरा, बल्कि दिल्ली तक की पुलिस को मेरा हुलिया बताकर उन्हें अलर्ट कर दिया होगा। मेरे बाल बड़े हुए नहीं थे। वो उसी वजह कता में थे जैसे कैप्टन हरिनाथ को हलाक करते और द्वारका फोर्ट को तबाह करते वक्त थे। मुझे अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस ने इसी वजह कता के बालों में देखा था। बालों को एक ही दिन में लंबे करना मेरे इख्तियार में नहीं था। मैंने कमर के गिर्द बंधा हुआ टाइम बमों वाला रुमाल खोलकर 6 के 6 टैबलेट बम सामने रख दिए। ये टाइम बम इंतहाई धमाका खेज थे। ऐसे ही तो बम थे जिन्होंने द्वारका फोर्ट के इतने बड़े एमुनिशन डंप को उड़ा कर रख दिया था। मैंने सोचा कि इन बमों को कमर के साथ बांधने की बजाय मुझे किसी डिब्बी में डालकर जेब में रखना चाहिए। अगर आगरा से दिल्ली जाते हुए रास्ते में मैं पकड़ा गया तो मेरी कमर के गिर्द बंधी हुई च्युइंगम टैबलेट को देखकर पुलिस को जरूर शक पड़ जाएगा, और जब उन्होंने लेबोरेटरी में इसका तज्जिया किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये च्युइंगम नहीं बल्कि इंतहाई धमाका खेज मवाद है। इस तरह मेरे गैर मुल्की जासूस या कश्मीरी कमांडो होने का उन्हें वाज़ेह सबूत मिल जाएगा। ये टाइम बम देखने में बिल्कुल च्युइंगम लगते थे। वही साइज और वही रंग हमने उन्हें दिया हुआ था। मेरे पास कोई डिब्बी नहीं थी। रिजवाना चाय लेकर आ गई। उसने मेरे सामने च्युइंगम की गोलियां देखकर पूछा, तुम च्युइंगम भी खाते हो? मैंने हंसकर कहा, खाता नहीं, चबाता हूँ। रिजवाना ने एक गोली उठा ली और अपने मुंह में डालने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और धमाका खेज टाइम बम, जिसको वो च्युइंगम समझ रही थी, उसके हाथ से छीन लिया। मैंने कुछ ऐसी घबराहट का इजहार किया था कि रिजवाना हैरान होकर बोली, क्या इसमें जहर है? मैंने कहा, यूं ही समझ लो। मैंने उसे कहा कि वो मुझे छोटी सी कोई डिब्बी ला दे। वो नीचे गई और टीन की छोटी चौकोर डिब्बी ले आई। मैंने 6 के 6 च्युइंगम टाइम बम डिब्बी में डाले, डिब्बी को बंद किया और पतलून की जेब में संभाल कर रख ली। वो मेरे कपड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, तुम्हें तो कपड़े बिल्कुल ठीक आए हैं। मैंने कहा, हाँ ये भी अच्छा है, अब मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। रिजवाना अपने साथ कुछ रुपए भी लाई थी। कहने लगी, मैं कुछ पैसे लाई हूँ, ये तुम अपने पास रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मैंने उससे बटुआ खोल कर दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं रिजवाना, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। मगर उसने मुझे जबरदस्ती 100 रुपए दे दिए। मैंने रख लिए। चाय पीने के बाद मैं जाने लगा तो रिजवाना ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, तुमसे बड़ी थोड़ी देर की मुलाकात रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक मुद्दत से तुम्हें जानती हूँ। अब तुम जा रहे हो, जुदा होने को जी नहीं चाहता। ये लड़की जज्बाती हो रही थी। मुझे चंद्रिका और मीनाक्षी दोनों औरतें याद आ गईं। वो भी कभी कभी इसी तरह जज्बाती हो जाया करती थी, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि इस लड़की के जज्बात सच्चे हैं। मैंने कहा, हो सकता है हमारी फिर भी मुलाकात हो जाए। वो कहने लगी, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। फिर मैं कैसे उम्मीद लगाऊंगी कि तुमसे फिर भी मुलाकात होगी। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और कहा, कुदरत को मंजूर हुआ तो हम फिर भी कभी जरूर मिलेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। वो मुझे छोड़ने नीचे तक आई। मकान की ड्योढ़ी में अंधेरा था। मैं खुदा हाफिज कहकर मकान की ड्योढ़ी से निकल गया। टुंडला शहर की मस्जिदों में अजानें हो चुकी थीं। आसमान पर सुबह का नूर फैल रहा था। मुझे वहां के लारी अड्डे का रास्ता आता था। रात को जहां जहां से हम गुजर कर आए थे वो रास्ते मैंने याद रखे थे। लारी अड्डे पर एक बस आगरा जाने की तैयारी कर रही थी। कोई आधे घंटे बाद मुसाफिर आने लगे। लारी आगरा की तरफ रवाना हो गई।
उस वक्त मेरा जहन रिजवाना के बारे में सोच रहा था कि ये लड़की न जाने लुधियाना के किस मोहल्ले की रहने वाली शरीफ माँ बाप की औलाद थी, मगर 1947 के खूनी हालात ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर ये अगवा न की जाती, अगर इसे सिख उठाकर न ले जाते तो आज इसकी शादी हो चुकी होती और इसके बच्चे होते। ये अपने खाविंद की खिदमत और बच्चों की परवरिश करते हुए लुधियाना शहर में शरीफाना जिंदगी बसर कर रही होती। यही सोच रहा था और सोचता चला जा रहा था कि दिन निकल आया और लारी आगरा पहुंच गई। लारी अड्डे से उतरकर मैं सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। पता चला कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन 1 घंटे बाद आएगी। मैंने अपना हुलिया तब्दील कर लिया हुआ था, इसलिए कुछ बेफिक्र हो गया और प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खामोशी से बैठने की बजाय इधर उधर टहल कर किताबों के स्टॉल पर अखबारात वगैरह देखने लगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कमांडो स्पाई को कभी और किसी भी वक्त दुश्मन के मुल्क में गाफिल नहीं होना चाहिए। वो चाहे जिस हुलिये में हो, दुश्मन मुल्क में किसी भी जगह किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता था। मैं स्टॉल पर एक उर्दू अखबार की सुर्खियां देख रहा था। मैंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है और वो दूसरा अखबार देखने की बजाय मेरी तरफ झुककर मेरे अखबार को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मैं वैसे ही खड़ा रहा, लेकिन जब वो आदमी पीछे न हटा तो मैंने अखबार स्टॉल छोड़ दिया और खुद परे हट गया। उस आदमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, भाई साहब आपके पास माचिस होगी। इस दौरान उस आदमी ने जेब से सिगरेट निकालकर उसे उंगलियों से सीधा करके मुंह में दबा लिया। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, मैं सिगरेट नहीं पीता। वो सिगरेट मुंह से हटाते हुए बोला, भाई साहब आप मुझे इधर के रहने वाले नहीं लगते, क्या आप पंजाब से आए हैं? उस आदमी का हुलिया ये था कि जिस्म दुबला पतला था, उम्र 50 के करीब होगी, खशखशी दाढ़ी में सफेदी आ रही थी, सर पर जिनाह कैप थी, बदन पर पुराना सा गर्म कोट और नीचे पाजामा पहना हुआ था। मौसम सर्द था जिसकी वजह से उसने कमीज के सारे बटन गले तक बंद किए हुए थे। मुझे उस आदमी पर शक हुआ। मैं एकदम मोहतात हो गया। मैंने कहा, जी हाँ, पंजाब में किस शहर से आए हैं? आपका लहजा जालंधरियों वाला नहीं है, क्या आप अमृतसर से आए हैं? मैंने यूं ही कह दिया, जी हाँ, और वहां से हटकर एक तरफ चल पड़ा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे यूं आजादी से प्लेटफॉर्म पर घूमना फिरना नहीं चाहिए था। यह आदमी यकीनन सीआईडी का आदमी था। उसे किसी तरह मुझ पर शक पड़ गया था कि मैं कोई मशकूक आदमी हूं। मैं टी स्टॉल के काउंटर पर आ गया, चाय का गिलास बनवाया और कोने में दीवार के साथ लगकर चाय पीने लगा और बुक की तरफ देखने लगा। वो आदमी वहां नजर न आया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से पीछा छूटा। सर्दी वाकई काफी थी। गर्म गर्म चाय ने मेरे बदन को गर्म किया। उस वक्त मेरा जी सिगरेट पीने को बहुत चाहा। सिगरेट वाला खोखा करीब ही था। मैंने वहां जाकर एक सिगरेट खरीदा और वहीं एक तरफ खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। इतने में किसी ने पीछे से मुझे कहा, भाई साहब आप तो कहते थे कि मैं सिगरेट नहीं पीता। मैंने चौंक कर पीछे देखा। वही आदमी मेरे पीछे खड़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में भी सिगरेट था जो सुलग रहा था। मैंने अपने सिगरेट की राख उड़ाते हुए कहा, जी हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। वो आदमी मेरे करीब हो गया। मुझे उसकी छोटी छोटी आंखें साफ नजर आ रही थीं। उसने अपनी आंखें मुझ पर जमाई हुई थीं। कहने लगा, भाई साहब आप मुझे अमृतसर के भी नहीं लगते, कहीं आप लाहौर के रहने वाले तो नहीं? उसके मुंह से लाहौर का नाम सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। ये बात साबित होने लगी थी कि ये आदमी खुफिया पुलिस वाला है और इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा मकाम भी नहीं था, आगरा स्टेशन का प्लेटफॉर्म था। वहां काफी लोग थे। एक तरफ मुझे पुलिस के सिपाही भी नजर आए। मैंने अपने हवास को काबू में रखा। मैंने सख्त लहजे में कहा, आप कौन होते हैं मेरे मामलात में दखल देने वाले? आपको किसने बताया कि मैं लाहौर का रहने वाला हूं? जाइए अपना काम कीजिए। मैं ये कहकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। मेरा रुख प्लेटफॉर्म के शुमाली सिरे की जानिब था। वहां प्लेटफॉर्म की ढलान थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता ढलान उतर गया, रेलवे लाइन क्रॉस की और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ चूंकि कोई गाड़ी आने वाली या जाने वाली नहीं थी, इसलिए प्लेटफॉर्म तकरीबन खाली पड़ा था। टी स्टॉल और बुक स्टॉल के खोखे भी बंद थे। मैं एक खाली बेंच पर बैठ गया। मेरी नजरें प्लेटफॉर्म का जायजा ले रही थीं। सामने वाला प्लेटफॉर्म भी मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि 2 प्लेटफॉर्मों के दरमियान लाइन पर कोई गाड़ी नहीं थी। जहां वो आदमी पहले खड़ा था, अब वो वहां नहीं था। खुदा जाने कहां गया। असल में खतरे की घंटी बज चुकी थी। मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, मगर मैं जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए वहीं बेंच पर बैठा रहा। मेरी निगाह प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से की तरफ गई, जहां से ढलान शुरू होती थी। क्या देखता हूं, वही सीआईडी का आदमी 2 सिपाहियों के साथ मेरी तरफ चला आ रहा है। अब मुझे वहां से भागना था, मगर मैंने एक बार फिर तसाहिल से काम लिया। बेंच से जरूर उठा, मगर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ चलने लगा, जैसे मैंने सिपाहियों को देखा ही नहीं। दूसरी तरफ नीचे रेल पटड़ी थी। मैं रेल की पटड़ी पर उतर गया। जरा आगे एक खाली डिब्बा खड़ा था। मैं उसमें चढ़ गया।
अंदर आते ही मैं एकदम एक्शन में आ गया। तेजी से खाली डिब्बे की दूसरी दरवाजे में से दूसरी तरफ उतरा और रेलवे लाइन पर दौड़ने लगा। वहां कोई रेलवे लाइन नहीं थी, रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था। मैं तेजी से नहीं दौड़ सकता था, फिर भी मैं अलांगता फलांगता जितनी जल्दी जितनी तेज भाग सकता था भाग रहा था। पीछे मुड़कर मैंने एक बार भी नहीं देखा। मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे स्टेशन से बाहर निकलने को रास्ता है भी या नहीं। रेलवे यार्ड खत्म हुआ तो सामने एक जानिब दीवार आ गई। दीवार बहुत ऊंची थी। मैं दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। उधर आगे एक वर्कशॉप आ गई जहां कुछ मजदूर एक रेलवे इंजन की सफाई वगैरह कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। एक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने यूं ही पूछा, रहमत अली मैकेनिक यहीं काम करता है। कौन रहमत अली? एक ने पूछा। मैंने पीछे मुड़कर कहा, मुझे सीआईडी वाला और दोनों सिपाही कहीं नजर ना आए। मैंने काम करने वाले मजदूरों या मिस्त्रियों से कहा, मेरा वाकिफ है, कहता था मैं यहीं काम करता हूँ, शायद उसने कोई दूसरी जगह बताई होगी। ये कहकर मैं एक तरफ चला तो पीछे से उनमें से किसी ने आवाज दी, उधर कहाँ जा रहे हो? बाहर निकलने का दरवाजा इस तरफ है। मैंने मुड़कर देखा, एक मिस्त्री सामने एक दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये छोटा सा दरवाजा था जो रेलवे यार्ड की दूसरी तरफ निकलता था। जैसे ही मैं उस दरवाजे से बाहर निकला, सामने वही सीआईडी वाला आदमी खड़ा था। इस दफा उसके साथ 4 सिपाही खड़े थे, जिनमें से एक सिपाही के पास राइफल थी। उसने राइफल हाथ में थाम रखी थी। सीआईडी के आदमी ने इशारा किया। इशारा मिलते ही 3 सिपाही मेरी तरफ बढ़े और तीनों ने आने वाहिद में दोनों तरफ से मुझे पकड़ लिया। चौथे सिपाही ने मेरी तरफ राइफल रखी थी। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, तुम लोग मुझे किस जुर्म में पकड़ रहे हो? मेरे पास दिल्ली का टिकट है, मैं बगैर टिकट नहीं हूँ। वो आदमी मक्काराना हंसी हंसा, महाराज आपको हम लाहौर ले जा रहे हैं, जरा थाने तक हमारे साथ चलें। वो मुझे पकड़कर अपने साथ एक तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं बड़ी आसानी से उनकी गिरफ्त से निकलकर फरार हो सकता था, मगर खतरा मुझे राइफल वाले सिपाही से था, जो राइफल ताने मेरे पीछे पीछे चल रहा था। शायद उन्हें ये बता दिया गया था कि ये आदमी कश्मीरी कमांडो और इसकी तरफ से जरा भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए। हम सड़क पर आए तो वहां पुलिस वालों की जीप खड़ी थी। उन्होंने मुझे जीप में धकेल दिया और 3 सिपाही इस तरह मेरे दाएं बाएं और पीछे आगे आ गए कि मैं उनके शिकंजे में था। जिस सिपाही के पास राइफल थी वो जीप के दरवाजे के पास बैठ गया। सीआईडी का आदमी आगे ड्राइवर के साथ बैठा था। जीप स्टार्ट हुई और बाजार में एक तरफ चल पड़ी। मुझे हर हालत में उनकी हिरासत से फरार होना था और इस किस्म के फरार की मुझे सख्त ट्रेनिंग मिली थी। मैं इतनी आसानी से पुलिस के जाल में फंसने वाला नहीं था। मैंने राइफल वाले आदमी की तरफ निगाह डाली। उसकी राइफल का रुख मेरी तरफ नहीं था। जीप जिस बाजार में से गुजर रही थी वहां लोग आ जा रहे थे और ट्रैफिक भी जारी थी। इस किस्म का रोड मेरे फरार होने के लिए मौजूद था। मैंने सोच लिया कि मुझे किस सिपाही को नीचे से जर्ब लगानी है और किस सिपाही की गर्दन तोड़नी है। सबसे पहले मैं राइफल वाले सिपाही को मारना चाहता था। मैं अभी उसका मंसूबा ही कर रहा था कि जीप अचानक एक तरफ एक इमारत के अंदर दाखिल हो गई। वहां पहले से एक बंदूक बरदार सिपाही मौजूद था। जीप एक अहाते में आकर रुक गई। मैं पुलिस के थाने में पहुंच चुका था। देखकर सामने वाले कमरे से एक सब इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ बाहर निकल आया। जब मुझे जीप से उतारा जा रहा था तो सब इंस्पेक्टर ने गाली देकर मुझे कहा, इसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? उस वक्त एक सिपाही ने मेरे हाथ पीछे करके मुझे हथकड़ी लगा दी। मैंने जंग नहीं हारी, सिर्फ एक लड़ाई हार गया था और पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। मैंने दूसरी लड़ाई के लिए जहन तैयार करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि इन लोगों के पास मेरी कोई तस्वीर नहीं है जो अहमदाबाद की पुलिस ने इन्हें भेजी होगी। अगर इन्हें अहमदाबाद पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए कोई इत्तला दी है तो भी मैं कभी इस बात का एतराफ नहीं करूंगा कि मैं वही आदमी हूं जिसने द्वारका फोर्ट का एमुनिशन का जखीरा उड़ाया है। ये लोग किसी भी तरह कम से कम आगरा में बैठकर मुजरिम साबित नहीं कर सकते। मुझे उसी वक्त हवालात में ले जाकर बंद कर दिया गया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे किस जुर्म में बंद किया गया है? मुझे टेलीफोन दिया जाए, मैं एसएसपी को फोन करना चाहता हूँ, वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। सब इंस्पेक्टर पुलिस, जो शक्ल से ही बड़ा जाबिर लगता था, हवालात की सलाखों के पास आ गया। उसने मुझे कहर भरी नजरों से देखा और कहा, अभी एसएसपी साहब आ रहे हैं, तुम अपने पिताजी को बुलाने का इंतजाम करो। ये कहकर वो अपने दफ्तर में चला गया। हवालात में 3 हवालाती कोने में पुराना कंबल ओढ़े बैठे थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उनमें एक सिख था। उसने मुझसे कहा, भैया जी, किसी की जेब काटी है या हेरोइन स्मगल की है? इधर आ जाओ, उधर बड़ी सर्दी है। हवालात में वाकई बड़ी सर्दी थी। तंग सी हवालात थी। मेरा जहन तेजी से वहां से फरार के मंसूबे सोच रहा था, मगर बज़ाहिर फरार का कोई रास्ता दिखाई न देता था। थोड़ी देर बाद वही सब इंस्पेक्टर एक सिपाही के साथ आया। मेरी हथकड़ी हवालात के अंदर भी उन्होंने नहीं उतारी थी। इसका मतलब था कि उन्हें मेरे कमांडो होने की इत्तलात मिल चुकी थी।
मैं एहतजाज करने लगा कि मुझे बताया जाए कि मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है, मुझे किस जुर्म में हथकड़ी लगाई गई है। सब इंस्पेक्टर मुझे साथ लेकर थाने में जो कुशादा बरामदा था उसके दरमियान वाले कमरे में ले गया। एसएसपी एस.के. भंडारी लिखा था। अंदर एक भारी तनोतोष का हिंदू लाला गर्म जैकेट और खद्दर का सूट पहने बड़ी कुर्सी में धंसा हुआ था। सब इंस्पेक्टर ने उसे सैल्यूट किया। एसएसपी ने मुझे घूर कर देखा, फिर सब इंस्पेक्टर से अंग्रेजी में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? उसने कहा, यस सर, मुझे पूरा यकीन है। एसएसपी ने सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक उतार कर रजिस्टर पर रख दी और सब इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, मिस्टर जोशी, अगर तुम्हारा ये वेंचर कामयाब हुआ है तो तुम्हारे साथ मेरी भी प्रमोशन हो जाएगी। इसकी 2 तस्वीरें उतारो। मेरी समझ में ना आया कि ये मेरी तस्वीरें किस लिए उतरवाने लगे हैं। मैं यही समझा कि थाने के रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें उतरवा रहे हैं। वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले गए जहां एक फोटोग्राफर बैठा एक तस्वीर के नकूश बारीक ब्रश से दुरुस्त कर रहा था। फौरन मेरी 2 तस्वीरें उतारी गईं। उसके बाद मुझे हवालात की बजाय एक कमरे में बंद कर दिया गया जिसको कोठरी कहना दुरुस्त होगा। उसमें कोई रोशनदान नहीं था, सिर्फ लोहे का दरवाजा था। मुझे अंदर धकेल कर दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।